My dear friends, today we are meditating on the verse which is in Matthew 2:10. प्यारे दोस्तों, आज हम मनन करने जा रहे हैं मत्ती अध्याय 2 वचन 10 से। When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ये कहता है, Yes, we read about the shepherds who saw the star और हम पढ़ते हैं कि चरवाहों ने तारे को देखा and they were filled with joy. और वे आनंद से भर गए। Why were they filled with joy seeing a star? जब उन्होंने तारे को देखा तो वो आनंद से क्यों भर गए? The star was a sign that the Messiah was coming तारा वो चिन्ह था कि मसीहा आ रहा है, and that he is here. कि वो यहाँ है। Why were they waiting for the Messiah? वो मसीहा का इंतजार क्यों कर रहे थे? The people of Israel were held captive for so many years by different kingdoms. क्योंकि अलग अलग साम्राज्य के द्वारा इसराइली लोगों को बंदी बनाया गया था। They were abused, they were held as slaves. उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ, गुलाम बनाए गए थे। And there was a prophecy by the prophet Isaiah saying that there will be a man who comes to save you from captivity. और यशायाह नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक मनुष्य आएगा जो उन्हें बंधुआई से छुड़ाएगा। So the people of Israel were waiting for so many years for the Messiah to come. इसलिए इसराइल के लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि And मसीहा the आएगा। star was a sign that the Messiah has come. और वो तारा चिन्ह था कि मसीहा आ गया है। They were filled with great joy. वो बड़े आनंद से भर गए थे There is someone who has come to free us, कि कोई हमें आजाद करने आया है, to deliver us, हमें छुटकारा देने आया है and to set us free. और हमें स्वतंत्र करने आया है। Yes, my dear friends. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, Today, as you've accepted Jesus as your Savior, आज जैसे आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, the star lives and shines bright in you. वो तारा आपके अंदर रहता है और तेजोमय होगा। God will use you as a star to shine in front of the people around you, परमेश्वर आपको तारे के समान उपयोग करेगा कि आप आसपास के लोगों पर चमकें, in front of the people who are held captive by sin, ऐसे लोगों के लिए जो पापों के गुलाम हो चुके हैं, by depression, निराशा के द्वारा, by darkness, अंधकार के द्वारा, by hopelessness. आशाहीनता से। God will make you shine परमेश्वर आपको चमकाएगा so that you will point to the Messiah, to the living God, ताकि आप जीवित परमेश्वर को दर्शाएं, who will deliver them from their hopelessness, from their sickness, from their burdens, from their darkness. जो उन्हें छुड़ाएगा उनकी आशाहीनता से, बीमारी से, बोझ से और उनके अंधकार से। You will be that guiding star आप वो अगुवाई का तारा बनेंगे which points them to the living God, जो उन्हें जीवित परमेश्वर की ओर लेकर आएगा। Jesus, यीशु who is our hope जो हमारी आशा है, and who is our जो deliverer. हमारा छुटकारा देने वाला है। During this Christmas season, इस क्रिसमस के समय में dedicate yourself to shine in front of everyone around you, अपने आसपास के लोगों के सामने तेजोमय होकर खुद को like the समर्पित करें, star in the dark sky, एक अंधेरे आकाश में तारे के समान, so bright that no one can miss it, इतना तेजोमय कि कोई उसे चूक ना पाए, and lead them to Jesus, और उन्हें यीशु के पास लाए, who is the brightest and shining star, जो सबसे तेजोमय तारा है, who gives us hope and light in the darkness. जो अंधकार में हमें आशा और ज्योति देता है। Shall we pray आइए हम प्रार्थना करें and dedicate ourselves for this mission during Christmas? और क्रिसमस के समय में हम खुद को इस मिशन के लिए समर्पित Lord, करें। thank you that you are our ultimate brightest shining star. प्रभु तू ही तो हमारा सबसे महान तेजोमय तारा है। You are the one who gives us hope, तू ही तो हमें आशा देता है, who delivers us from sin and sickness. जो हमें बीमारी और पापों से छुटकारा देता है। You are the reason for our life, Lord. तू ही तो हमारे जीने का कारण है। And for the joy of Christmas, क्रिसमस के आनंद के लिए today help us to be that guiding star that guides people to you, Lord. मदद कर कि हम लोगों को तेरी ओर लाने वाले तारा बने। Help our life to reflect your goodness, मदद कर कि हमारा जीवन तेरी भलाई को दर्शाए, your holiness, तेरी पवित्रता को। and whatever you have to offer to the people, Lord, let us emulate और it. जो तू लोगों को देना चाहता है उसे हम लोगों को दर्शाने वाले बने। Help our light to shine bright in this dark world, अंधकार के बीच में हमारा जीवन तेजोमय होने में मदद कर, and let people be saved through us, Lord. और हमारे द्वारा लोग उद्धार पाने पाए प्रभु, And you enter into their hearts and change their life. और तू इनके हृदय में आ और उनके जीवन को बदल दे प्रभु। We dedicate our lives for this mission
during this Christmas. इस क्रिसमस के लिए, इस मिशन के लिए हम अपना जीवन तुझे समर्पित Use us, करते हैं। Lord. हमारा उपयोग कर And प्रभु। help us to be a shining star in this dark world. इस संसार में तारे के जैसे चमकने में मदद कर। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगती हूँ, Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। यीशु बुलाता है कि नए वर्ष की आशीष सभा। We are going to pray for you that 2025 will be a year of great blessing. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि 2025 ये साल आपके लिए बड़े आशीष का साल हो। We will be sharing God's promise and God's prophetical plans for you, for the nation in 2025 in person in this meeting. और इस सभा में हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का इस साल के लिए प्रतिज्ञा वचन और आपके लिए क्या वचन है परमेश्वर का, इस सारी बातों को हम व्यक्तिगत रूप में इस सभा में बताएंगे। इस मीटिंग में गवाही देने के लिए आई हूँ। ब्रदर ने पदमा नाम लेके बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना किया है। हमारा कपड़ा का दुकान है और उस दिन दीपावली है और पहला दिन एक भी धंधा नहीं हुआ। यीशु बुलाता में प्रार्थना करिए और तुरंत पिछले साल से इस साल में दुगना मुझे आशीष मिला है, ताकि नया वर्ष 2025 को परमेश्वर के आशीष के साथ शुरू किया जा सके। वर्ष 2025 के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके साथ साझा करेंगे और उनका परिवार नए वर्ष के आशीष सभा में संदेश देंगे और प्रार्थना करेंगे। 5 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। स्थान होगा सेंट जॉर्ज स्कूल ग्राउंड, पूनमल्ली हाईवे, पच्चापन कॉलेज मेट्रो स्टेशन, चेन्नई। Let the sorrows of the past years go. और पिछले साल के सारे दुख चले जाएं। Let all the miracles that you need be given to you. और आपको जो भी चमत्कार चाहिए वो आपको दिया जाए। Let 2025 be a year of blessing for you as we pray together in this meeting. और जैसे कि इस सभा में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2025 आपके लिए आशीष का साल हो जाए। This meeting will not be telecast live. और ये सभा जो है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी। So come in person to get blessed. इसलिए आशीष पाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप में आए।